computer camera not working, that is fine, right? If the camera is not working, that is fine. So once again, welcome. आप सभी का स्वागत है on this night. तो जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. This happens every month on Purnima. This is a regular feature. So today we do not talk about disease or conditions. आज हम किसी बीमारी या कंडीशन के बारे में बात नहीं करते हैं कि मेरा ये लेवल है, मेरा वो लेवल है, and this is what is happening. Okay. Today is a day to explore the celebratory aspect of life. Celebration कम हो गई है सभी की, isn't it? सभी को कारण चाहिए होता है कुछ सेलिब्रेट करने के लिए, whether it is a bank balance, whether it is a designation, whether it is a big house or something. And for many, they need the right kind of levels. Okay. So, but for celebration, you don't need that. So I welcome all of you to this session. So like I was saying, it's been quite a journey for us here at Astika, and I'm sure our associate organizations which started later, like Medini and Avisa and Ameda, हर किसी का अपना अपना वो है. For us, in our first year, we used to have what you call, we had a week of yoga celebrations, okay, for the International Day of Yoga. So we are approaching that, though we are a little far from that, but we are not able to do that anymore. However, what is the importance of yoga, what it is, okay, and how we can explore it, okay. So I'm not the best person to talk about it. I'll hand over the session to the person who's world's first Kumbhak yogi and the only Kumbhak yogi, as far as we know. He's opened up paths of health and happiness for many of us. और जो लोग लेटे हुए हैं थोड़ा सीधा बैठ जाएं, सीधा बैठ जाएं. ये लेट कर देखने वाली फिल्म नहीं है. Get your own popcorns, etc. So I'll hand over the session to Swamiji. There is a meditation, there is a process that we do. We do not record that, we do not repeat it. So वो आज ही होगा, उसके लिए बार बार request नहीं करेंगे, because वो नहीं मिलेगा. That is to be done today only, and this is unique because it is different every month. Okay. So on that note, I'll hand over the session to Swamiji. Just give me a moment, please. कैसे हैं सब? So यहाँ पे हम in this on this platform, rather I would say, we explore a little bit about the other dimensionally things, other dimensions, not the physical dimension, but a dimension which is holding this physical dimension. So आज मैं आपको बहुत simple terms में, in a very simple term, I'll talk about yoga, or rather the secret of yoga. तो ये आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा. You must not have read it anywhere. At least I don't know. मैंने नहीं देखा कहीं इस तरीके से describe करते हैं. So because yoga is a very hot product at this point, है ना? दुनिया में actually yoga बड़ा hot product है.
So what is yoga? ये है क्या? So I'll describe it, and I'll also describe rather the crux of various facets of life. जीवन के विभिन्न आयाम का जो जड़ है वो मैं आपको इशारा करूंगा, दिखाऊंगा. हाँ, so my talk will be just a talk if you don't experience it. अगर आप इसको अनुभव नहीं कर पाए तो ये बातें केवल बातें ही होती हैं. लेकिन हाँ, लॉजिकली हर एक इंसान इस बात को समझ पाएगा, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं. यू अप्लाई योर माइंड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, so understanding will happen, not the experience. Experience के लिए, for experiencing that you will have to push yourself a little bit. थोड़ा कुछ आपको अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी बनता नहीं है. कुछ तो इन्वेस्टमेंट चाहिए. हाँ, तो सबसे पहले इसी से शुरू करता है. हाउ दिस यूनिवर्स फंक्शन, ये ब्रह्मांड काम कैसे करता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ, इफ यू वांट राइस, अगर आपको चावल चाहिए क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू पुट इट इन द ग्राउंड. जमीन पे आपको उसको डालना पड़ेगा और जमीन इसको वापस करती है. यस और नो? गेहूं चाहिए तो पुट सम सीड्स इन द ग्राउंड एंड द ग्राउंड विल गिव यू मोर देन व्हाट यू हैव पुट. जो आप डालेंगे उससे कहीं ज्यादा ये आपको दे. ऐसे ही काम करता है. सो प्रेम चाहिए तो क्या देना पड़ेगा? प्रेम देना पड़ेगा. पैसा चाहिए तो क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा. नहीं देंगे तो आएगा नहीं. हाँ, जो आपको चाहिए, जो आप इकट्ठा करना चाहते हो वो पहले देना पड़ेगा. दिस इज हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स. जीवन अगर आपको चाहिए, बेबी चाहिए तो क्या, गर्भाधान वाले सारे यहां पे होंगे. बेबी चाहिए तो क्या देना पड़ेगा? बेबी चाहिए तो शुक्र और ह्यूमन रजस जब आपस में मिलता है तो बेबी होता है. आपको वो देना पड़ता है. पृथ्वी कौन है? फीमेल पृथ्वी है ना. तो पृथ्वी में शुक्र डालेंगे और या फिर आपका, आपने जो कमाया है, अपनी शक्ति इकट्ठी की, वो डालेंगे तो एक लाइफ होती है. आप अपनी लाइफ ही थोड़ा डालते हैं, तो जो आपने इकट्ठा किया वही जब डालेंगे तो आपको मिलेगा. हाँ, इकट्ठा किया उसको क्या कहते हैं? व्हाट डिड यू कलेक्टेड, इसे कहते हैं योग. जो इकट्ठा किया वो योग हुआ. फिर उसे जब आप दान करेंगे तो क्या होता है? योग दान. अरे वाह, बड़ा सुंदर सा शब्द निकला ना, योगदान. आपने ये शब्द सुना होगा. हैव यू हर्ड दिस? तो क्या दान कर रहे हैं आप? जो आपने इकट्ठा किया. तो जब ये दान होता है, योगदान होता है, तो यूनिवर्स क्रिएट होता है, ब्रह्मांड पैदा होता है. योगदान से ब्रह्मांड पैदा होता है. अच्छा, अब इसका दूसरा आयाम समझते हैं.
बहुत सिंपल टर्म में आपको योग समझा रहा हूं, बहुत सिंपल टर्म। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ नहीं। बारिश कैसे होती, दिस इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ योगा। बारिश कैसे होती, मानसून कैसे आता। इफ यू आर लिविंग इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी भूभाग में अगर आप रह रहे हैं, तो ये पानी वाले बादल उत्तर की तरफ, हाउ डज these water filled vapors or cloud reach the northern part of it, ये नॉर्थ पहुंचते कैसे हैं। लो प्रेशर अट्रैक्ट्स मानसून, ऑब्वियस सबने अपनी छोटी कक्षाओं में, क्लासों में पढ़ा होगा। एवरीबॉडी वुड हैव एक्चुअली रेड दिस। प्रेशर कम हो जाता है तो उसको भरने के लिए बाकी जगह से हवा आती है। तो किस चीज को भरा जाता है, गेट इट वेरी राइट। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज मैं बड़ी जल्दी आपको समझा के विल टेक क्वेश्चंस, बट यू विल हैव टू बी लिटिल अलर्ट। थोड़ा होश में रहिए। तो किस चीज को भरा जाता है, जो खाली है। लो प्रेशर, उसको भरा जाता है। थिंक अबाउट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में किसी चीज के बारे में सोचें, जरा सोचें। पेड़ में पानी ऊपर कैसे चढ़ता, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ लो प्रेशर अबव, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। ऊपर लो प्रेशर नहीं आएगा तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। ऊपर से नीचे पानी क्यों गिर रहा है नदियों में, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लो की तरफ में जा रहा है। कुछ भी देख लो, कहीं भी आप देख लीजिए, जो जगह खाली होती है वहां की तरफ में उसको भरने की कोशिश हो रही है, और यही सारी दुनिया चल रही है इसी हिसाब से। एक क्रक्स, एक जड़ बता रहा हूं मैं लाइफ की। हर चीज एक लो जोन की तरफ में जाने की कोशिश कर रही है, फ्रॉम हाई टू लो। सब कुछ देख लीजिए आप, कुछ भी उठा के देख लीजिए, कोई भी आपको समझ में आए चीजें आप उठा के देख लो। पैसा कहां जाता है, डिमांड किसे कहते हैं, लो जोन को डिमांड कहते हैं। जिसका पेट भरा है उसको भूख लगेगी, नहीं लगेगी। तो भूख का मतलब क्या हुआ, कुछ चीज लो हो गई, कम हो गई ना, हाई से लो की तरफ में ही जा। कुछ भी उठा लो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा। हालांकि मैं ये बात आप लोगों को बताता हूं कि भारतीय मनुष्य का खून ही साइंस है, क्योंकि इस धरातल पे हमने जीवन को ऐसे ऐसे तरीके से एक्सप्लोर किया है विच यू कांट इवन गेट इन योर माइंड। आप अपने दिमाग में उसको रख भी नहीं पाएंगे, योर माइंड विल गेट बॉगल्ड। प्रॉब्लम ये है कि अभी हम जड़, द रूट को नहीं पकड़ पा रहे। शास्त्रों में पढ़ते हैं, कहते हैं ये तो अलग अलग बातें करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन शास्त्र। आपको नहीं समझ में आता तो हम क्या करें। People have seen things from different perspective and said it.
अलग अलग आयाम से देखा और उस आयाम को एक्सप्लोर किया। वो बताया अलग अलग आयाम की वजह से हमें कॉन्ट्रडिक्शन लगा, जबकि वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। तो हर चीज, एक क्रक्स क्या है, हर चीज हाई से लो की तरफ में जाती है। तो साइंस जिसे कहते हैं ना, वॉट एवर यू कॉल ए साइंस, है ना, वो थोड़ा देखते हैं। एक्चुअली सब कुछ साइंस ही है। ये तो शब्द जो है ये फिरंगियों ने अपना पेटेंट करवा लिया, पर इससे थोड़ी यूनिवर्स साइंस करना छोड़ देगी। तो जरा साइंस समझते हैं, है ना। और ये साइंस हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने बताने की कोशिश की। सो डोंट थिंक द ओल्ड एज ऋषिज एंड ऑल दोस महानुभव, जितने संत सिद्ध योगी ऋषि हुए, ये कोई अलग नहीं है हमसे, ये हमारे बाप दादा। डोंट थिंक देम एज सम हेवनली बॉडीज, स्वर्ग से उतरे हुए लोग नहीं है, हमारे पूर्वज। राम कृष्ण ये हमारे पूर्वज हैं, हमारे बाप दादा है ना। आज हम अपने ही बाप दादाओं को गाली देना मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं। बड़ा रिडिकुलस सा मामला है। आप अपने पिता को भी इतनी तो इज्जत देते ही हैं जितनी दरकार है आपके अंदर, तो अगर आप कुछ गलत करेंगे तो रहेगा। वो तो परदादा है ना हमारे, बहुत सीनियर हो गए ना, मगर आजकल हम उनको गालियों देते हैं, कहते हैं कि दी हम तो बड़े एडवांस हैं। और एडवांस का मतलब होता है किसी को गलत दिखाना। तो वो हमारे बाप दादा थे। हाँ, आप माने नहीं माने वो आपकी मर्जी, मगर कम से कम एज अ परदादा, परदादा, वो जितना रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं उतना देना चाहिए। सो साइंस में ये कहा जाता है कि क्लाउड होता है। हाँ, यूनिवर्स कैसे बनती है, जो इधर उधर बिखरा हुआ मैटर है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इट स्टार्ट्स गैदरिंग टुगेदर एंड बिकम्स हेवनली बॉडीज, प्लैनेट्स, है ना। वो प्लैनेट्स बन जाते हैं। अब मैं आपको फंडामेंटल साइंस का भी क्रक्स बता रहा हूं। वो इकट्ठा क्यों हो रहा है, कौन खींच रहा है उनको। अगर पृथ्वी इकट्ठी होकर एक बॉल की तरह है, तो कहां खींच रहे हैं मैटर्स, जो वो पृथ्वी का जो मैटर है, मटेरियल है, किस तरफ में खींच रहा है, कौन खींच रहा है। उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लो होगा ना, जिस तरफ में वो खींच रहा है। आपने नाम सुना होगा ब्लैक होल्स, सुना है नाम। खींच रहा है ना उसके अंदर कुछ, कुछ बहुत लो है, इतना जोर से खींच रहा है कि वापस नहीं आता। इवन लाइट कैन नॉट बाउंस बैक। कुछ तो बहुत लो होगा, वेरी लो जोन। हाँ, तो ये कैसे बनता है। ब्लैक होल क्या एक ही जगह होता है, नहीं नहीं, हर जगह ब्लैक होल्स है। आपको भी चाहिए ना। व्हाट इज अ ह्यूमन बीइंग हु वांट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। आप भी खींचना चाहते हो ना चीजों को, यस और नो। आप भोजन खींचते हो कि नहीं खींचते, रोज के रोज पानी खींच रहे हो, इच्छाएं, व्हाट आर विशेस, बहुत इच्छा है ये हो जाए मेरे साथ में, वो हो जाए, ये मुझे चाहिए, वो चाहिए। बाकी तो छोड़ो, मटेरियल के अलावा नॉन मटेरियल चीज भी चाहिए ना। दिव्यता भी चाहिए, ईश्वरत्व भी चाहिए, योगा भी चाहिए। हाँ, चाहिए ना, खींचना ही चाह रहे हो हर चीज को।
कुछ तो खींच रहा है ना आपके अंदर, कोई तो ब्लैक होल है कि नहीं है? तो इसको दो तरीके से समझें। पहले मटेरियल का मैं बता रहा हूं आपको, फिर आगे की बात। तो एक लो जोन बन जाएगा तो आसपास से उसको भरने के लिए चीजें आएंगी। बवंडर जानते हैं, ट्विस्टर। हाँ, बड़ा सा बवंडर होता है ना हवा का, उसके बीच में क्या है? वैक्यूम। और चीजें उसके इर्द गिर्द घूम रही है। यस और नो? किसके इर्द गिर्द घूम रही हैं? वैक्यूम के, कुछ नहीं। क्या कमाल की बात है। इज इट साइंस? 100% दिस इज साइंस। इज इट साइंस? जो मैं कह रहा हूं क्या वो साइंस है? प्योर साइंस। एक वैक्यूम के इर्द गिर्द सारा मटेरियल घूम रहा है। तो जीवन भी किसी तो वैक्यूम के इर्द गिर्द घूम रही होगी। आप केवल फिजिकलिटी को पढ़ना चाहते हैं तो उसको साइंस कहते हैं। हम तो फिजिकलिटी से भी परे जाके पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और इसको विज्ञान कहते हैं। साइंस और विज्ञान में भेद है। विज्ञान इज बियॉन्ड फिजिकलिटी, साइंस इज विद इन फिजिकलिटी। सो साइंस हैज लिमिटेशन, विज्ञान इज अनलिमिटेड। आप अपने जीवन से कनेक्ट करें। जरूरी नहीं है पढ़ के या फॉर्मूला करके आपको कुछ मिल जाएगा, नहीं। आप अपने जीवन को देखें। आप खींचना चाह रहे हैं हमेशा, बुढ़ापा हो गया, 90 साल हो गया, शरीर काम नहीं करता, मगर अभी भी बहुत कुछ चाहिए। हाँ है ना? यानी कोई तो चीज है जो खींच रहा है। तो बवंडर में चीजें खींचती हैं और फिक जाती है ना। इफ समथिंग गेट पुल्ड इट गेट्स थ्रोन आउट ऑल्सो। कोई चीज खींचती है और फिक जाती है। ब्लैक होल में नहीं होता, खींचता है बस, बंद, खत्म, एंड। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अब ये साइंस है, कहता है कि भाई डुअलिटी होती, दो चीज हमेशा होगा। एक है तो दूसरा होगा। टाइम है तो एंटी टाइम होगा, मैटर है तो एंटी मैटर होगा, डुअलिटी होगी हमेशा। ये साइंस है, ये साइंस बता रहा हूं आपको। हमेशा कहते हैं दो चीज हो, मैटर है तो इसका ऑपोजिट होगा। सो एक ब्लैक होल है जिसमें चीज खींच जा रही है, और एक इसका ऑपोजिट है जिसमें फिक जाती है। दो तरीके से। अब आपके जीवन से कोरिलेट करके देखते हैं, ठीक है? तो आपको कुछ चाहिए, सपोज कीजिए आपको कुछ चाहिए, वो मिल गया, फिर आपने उसको भोग लिया। अब क्या होगा? अब नहीं चाहिए आपको। आया ना? सबने ये चीज देखी होगी। आप जिस चीज को भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं पूरे तरीके से, उसके बाद उससे डिटैचमेंट हो जाता है। आप जिस चीज को भोग लेते हैं तो उसके बाद वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता आपके लिए, तो वो फिर आपसे फिक जाता है। ठीक है? अच्छा, कुछ समय के बाद आपको भोगने की भी इच्छा खत्म हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान के जीवन में ये आ जाए, मगर 100 में से 15 से 20 लोग ऐसे होते हैं जिनको भोगने की भी इच्छा खत्म हो गई होती है। तो वो समाज में रहेंगे, इनका विवाह करवा दो, they'll get married, but they'll have disinterest. They'll not be interested in performing things which a marriage needs.
तो आजकल के समय में सबको एक ही हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं ना, साइंस क्या कर दिया, साइंस ने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, नहीं सबको ऐसे ऐसे ही करना है, सबको स्कूल जाना है, सबको नौकरी करनी है, सबको पैसे कमाने हैं, है ना, ऐसा स्टैंडर्डाइज कर दिया ना। नहीं नहीं, ये बहुत बुरा कर दिया, बहुत गलत कर दिया। तो अगर आप वो स्टैंडर्ड में फिट नहीं आते तो आपको क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकली इल, साइकोलॉजिकली ठीक नहीं, तो सबका विवाह करवाना ही है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए। अगर सभी का विवाह कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा 20% ऐसे लोग होते थे जिनका विवाह नहीं करते थे, कहते नहीं नहीं, यू आर नाउ आउट ऑफ दिस होल गेम, सो थिंक अबाउट समथिंग एल्स, को आगे जाओ, चलो इसमें मत फंसो, आगे जाओ। और वो हमेशा ब्रह्मचर्या में जाते थे। ब्रह्मचर्य का मतलब जीवन को जानने की का रास्ता, उस तरफ में जाते थे। जीवन को भोगना नहीं है, भोगना खत्म हो गया, अब इंटरेस्ट नहीं है, तो जानना। तो जानिए, अब कोर को जानिए। तो ये दो तरीके से चीजें हैं, एक भोगना, एक भोग है, और दूसरा फिर ब्लैक होल आ गया, अब वापस नहीं रिवर्ट होगा, अब ब्लैक होल आ गया, चीजें खत्म हो जाएगी, इट विल एंड अप, वो वापस रिबाउंड नहीं हो। तो आपका चीजों की इच्छा और सिक जाना, फिर नई इच्छा, और उस इच्छा का या तो बढ़ जाना या तो खत्म होगा, ये कार्मिक गेम है, इसे ही कर्म सिद्धांत कहते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान लगा के समझेंगे, बिकॉज आई एम गोइंग अ लिटिल डीप 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 इनटू थिंग्स, मगर ये मैं लॉजिकली बोल रहा हूं तो सभी को समझ में आना चाहिए। तो आपके अंदर एक कमी है, उसको आप जिंदगी भर पूरा करते रहते हैं, है कि नहीं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कमियां हैं, अलग अलग वैक्यूम है, जिसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इंग्लिश, राइट। वो फ्लो में ना मैं थोड़ा बहक जाता हूं। अंग्रेजी तो जब लोगों से बात करना शुरू किया तब जाके सीखना शुरू किया, अदरवाइज दैट इज, क्या कहते हैं उसको, आई एम लिटिल डिसेबल्ड इन इंग्लिश। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, in the whole cosmic space, in the whole cosmic space or in the universe, you will always see movement happening from high to a low zone. It can be high pressure to low pressure, high intensity to low intensity, high concentration to low concentration. This always happens. You can you can actually understand anything in this cosmic space through this simple principle. So when a stock market is up, where will it go? It will only go down. And when it is down, where will it go? It will only go up. आप इसको बस इतने से समझिए, wherever the stock market it is, it becomes a high concentration zone. From high, it will always go to low. So you will see it as an alternative. If you understand where can be the peak, you can actually find out. आप एक्चुअली फॉर्मूला भी बना सकते हैं, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ फॉर्मूला, when will it pick up and when will it start going down, if you understand how it functions. So आप
You can understand business. But what is business? Wherever there is need, you supply that. है कि नहीं है? जहां पे कुछ जरूरत है वहां आप डाल दीजिए. That is business. Right? So, business का मतलब क्या? जहां जरूरत है. जरूरत का मतलब जहां खाली है, emptiness है. Wherever there is vacuum, जहां भी vacuum है उस तरफ चीजें जाए. तो आपका जीवन क्या? What is your life? You are trying to fill vacuums. Yes. अगर आपको एक इच्छा, you want something, you have a desire, you want to fulfill it. What is a desire? It's an emptiness. खालीपना है ना वो. So what is desire? It's an emptiness. तो खाली जगह तो चीजें भर रही हैं सब, बस सारा जीवन यही है. The whole life is filling up the empty space. किसी चीज को देखो, किसी चीज को देखो, just see anything. मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है. I have a great desire. Great का मतलब it's a more empty space, more emptiness. Yes or no? What is a great desire? Larger emptiness. ज्यादा खालीपना है. आप इसको इस तरीके से देखना शुरू कीजिए. Just try to see things from this way. So how does this universe gets made, or heavenly bodies, or all you what you call as planet and आकाश गंगा जैसे गैलेक्सीज. गैलेक्सी कैसा होता है? What is galaxy? It is moving around an axis. There is an axis of galaxy. वो खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे थे. What is Earth? पृथ्वी क्या है? उसका भी एक्सिस है. There is an axis of Earth. It is rotating around it. And there is something called as pull, gravitational pull. इसके अंदर there will be an empty thing inside. कोई empty चीज है जिसको कि ये भर रहा है. That's how gravitational gets produced. गुरुत्वाकर्षण जिसे हम कहते हैं, गुरु आकर्षण, कोई ऐसी चीज है जिस तरफ में वो आकर्षित हो. What is your life? It is basically गुरुत्वाकर्षण. आप चीजों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं. यस. अच्छा, अब इन द लार्जर स्पेस कोई एक ऐसी खाली जगह है. नाउ दिस एम्प्टी स्पेस, आई वाज टॉकिंग अबाउट फिजिकल एम्प्टी स्पेस. क्या ये अलग अलग तरीके से एम्प्टीनेस हो सकता है आपकी लाइफ में? यू वांट लव. इज इट एन एम्प्टी स्पेस? Or what you, it's a different kind of space in you. वो एक खाली जगह है ना जो प्रेम का खाली जगह है, वो अलग डायमेंशन में है ना. इट इज नॉट फिजिकल. फिजिकल नहीं है ना. सो देर आर एम्प्टी स्पेसेस इन वेरियस डायमेंशन. अलग अलग आयाम में खाली जगह है जिसको कि ये पूरा ब्रह्मांड और एक जीवन, आप जैसा जीवन भरने की कोशिश. अलग अलग डायमेंशन में वो एम्प्टी स्पेस होगा ना. जो आपका इमोशनल खालीपना है, इट इज नॉट फिजिकल. जो आपका प्राणिक खालीपना है, इट इज नॉट फिजिकल. इट इज ट्रांजिएंट. इट इज ट्रांजिएंट. वही हम प्राणशक्ति डायग्नोसिस कर रहे हैं ना. सबसे बड़े खाली स्पेस को क्या बोलते हैं? विच इज encompassing all these dimensions. इन सभी का एक कंपाइलेशन है. इन सभी से बड़ा है और सभी उसके अंदर हैं. ऐसे खाली जगह को हम क्या बोलते हैं मालूम? ऐसी खाली जगह को हम शिव बोलते हैं. जिसके इर्द गिर्द आप जो सोच सकते हैं वो घूम रहा है या उसमें गिरने की कोशिश कर रहा है,
वो खाली स्पेस को हम शिव बोलते हैं। शिव का एक और मतलब होता है, इट इज ऑल इनकम्पासिंग, इसके अंदर कुछ छूटा नहीं है, इसके अंदर कुछ छूटा नहीं है, सब सारे खाली स्पेस एक साथ जहां मिलते हैं उसे शिव कहते हैं। तो सब कुछ कहां गिरने की कोशिश कर रहा है? शिव तत्व में। सब कुछ वहीं गिरने की अल्टीमेटली कोशिश कर रहा है। उसके सतही तरीका आप देखते हैं, यू वांट समथिंग, आपकी इच्छा है कुछ, है ना? वो इच्छा पूरी कब होती है? जब आप पा लेते हैं और भोग लेते हैं, तो इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो खत्म हो जाती, क्रैश हो जाता, फिर वो शिव तत्व में चला गया, अब नहीं चाहिए आपको वो अल्टीमेट होगा। लेकिन जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक वो आप करते जाएंगे, वो आपको इच्छा बट मतलब चाहिए, वो यू वांट दैट। ये कर्म सिद्धांत होगा, दिस इज कर्म सिद्धांत। सो आपका जीवन क्या है? जो पूरी इच्छाएं नहीं हुई, वट एवर डिजायर्स विच आर अनफुलफिल्ड, यू वांट टू फुलफिल दैट। ठीक है? ओनली इफ योर डिजायर्स आर फुलफिल्ड, यू आर रेडी फॉर योगा। Till your desires are fulfilled, if you try to go towards yoga, you will become more bhogi. आप इच्छाओं को अगर दबाएंगे तो वो कहीं ना कहीं से वो पूरी होगी। सपोज देयर इज अ फ्लो ऑफ वाटर, यू वांट टू स्टॉप इट, इट विल फाइंड इट्स ओन वे, इजंट इट? सो क्या सभी को योगा चाहिए? मे बी यू हैव क्रिएटेड अ फैशन कि सभी को चाहिए, बट इन रियलिटी वेरी फ्यू वांट, बहुत कम लोग चाहिए जिसको कि वो शिव तत्व में विलीन हो जाए, खत्म हो जाए। Nobody wants to die. Yes. Now, try to put any kind of a theory on this. कोई भी शास्त्र उठा लो, कोई भी शास्त्र उठा लो, pick up any shastra, and whatever I said, the crux of how life is functioning, you will only find exploration of that there. वही आप एक्सप्लोरेशन देखेंगे। So when Patanjali says, जब पतंजलि ये बोलते हैं, what is the method? He is giving methods. He is giving methods to fall into Shiva Tattva. He is giving methods. वो methods बता रहा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. He is stopping everything. किस फंडामेंटल्स पे ये बेस्ड है? Whatever I said, from high to low. So वो केवल आपको तरीके बता रहे हैं, but it is based on this principle only. What is asana? Where you do not require to move. आपकी मूवमेंट को भी रोक दिया. What is प्राणायाम? एक्चुअल प्राणायाम का मतलब मालूम है आपको क्या होता? When the prana which has created various facets of you, जिस प्राण ने आपके बड़े अलग अलग आयाम बना दिए हैं, उसको एकत्रित, इकट्ठा कर देना, एक बना देना, so that it cannot create other facets. Just it stays or it goes inside. सिंपल तरीके से
बाहर से अंदर की तरफ चीजों को खींचना शुरू कर देना, टुवर्ड्स दैट वैक्यूम. देयर इज अ वैक्यूम इनसाइड, यस और नो? विदाउट दैट यू कांट एग्जिस्ट. आपके अंदर वैक्यूम है ना, तभी तो आपका जीवन चल रहा है. तो उस वैक्यूम में आपको घुसाते जाना. आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार. नाउ फॉरगेट अबाउट द एक्सटर्नल. प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? फ्रॉम लुकिंग आउट यू लुक इन. रोक दीजिए आपके एक्सटर्नल फोकस. प्रत्याहार, धारणा. यू विल गेट सक्ड इन दैट वैक्यूम. आपको लगेगा आप अंदर खींचते जा रहे हो. धारणा, ध्यान. नाउ सडनली देयर विल बी अ कट ऑफ फ्रॉम आउटसाइड. आपको समय का पता नहीं लगता. यू विल गेट सक्ड इन. ध्यान, एंड देन समाधि. Even though there will be a little awareness, but you have stopped any kind of external push. वैक्यूम में आप समा गए. Even time crashes in samadhi. ब्लैक होल में क्या होता है? Even light crashes. Just correlate. We have been talking about science for thousands of years. Now they are टर्मिंग इट इन डिफरेंट वे. टर्मिनोलॉजी अलग लगा ली और वो कहते हैं साइंस भी हमारा है. नहीं साहब, हम तो यही बात बोल रहे हैं. मेथडोलॉजी दी है साइंस ने. कोई मेथड दिया आपको? आपके वैक्यूम के बारे में तो साइंस बात भी नहीं कर. केवल फिजिकल वैक्यूम, ब्लैक होल के बारे में बात कर. फिजिकल वैक्यूम, नॉट इवन द वैक्यूम which is beyond that gravity, because of which gravitation happens. उसके बारे में भी बात नहीं कर. I am telling you the crux of life. और if you get annihilated in that vacuum, इस शिव तत्व में जो जब आप विलीन हो जाते हैं, this is called as मुक्ति, मोक्ष, enlightenment, self realization, निर्वाण, कैवल्य, समाधि, निर्विकल्प समाधि. समाधि की भी स्टेजेस बताइए सर. सो इज इट टू टफ टू अंडरस्टैंड? अरे नहीं बाबा, कोई आपको समझा, कोई बता नहीं रहा उस तरीके से. आप सोच रहे अरे योगा मीन्स व्हाट? हेवनली थिंग. ये तो ऊपर से उतर के देवी देवता आएंगे, ऋषि मुनि आएंगे, तब जाके ये होगा. अरे आपकी लाइफ में यही हो रहा है. शिव तत्व बाहर नहीं है, आपके अंदर ये जो खींच रहा है, जिसकी वजह से इच्छाएं हैं आपके अंदर. इट्स द पुल, द वैक्यूम, द नथिंगनेस और द एवरीथिंगनेस. क्योंकि यहां पे लॉजिक फेल हो जाएगा साहब. एक टाइम के बाद में ना लॉजिक कैन नॉट वर्क. There is something more than logic you require. तो शून्य का मतलब क्या होता है? एम्प्टीनेस. मगर शिव का मतलब क्या होता है? एम्प्टीनेस एज वेल एज फुलनेस. क्योंकि एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर. आपके अंदर भी शिव तत्व है. क्या दूसरे इंसान के अंदर है शिव तत्व? है ना? क्या ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में शिव तत्व है ना? कहां नहीं है? wherever you see something, a matter, there is शिव तत्व there. Without that it cannot happen. तभी तो एक पत्थर भी इकट्ठा हुआ है. शिव तत्व है ना अंदर, तभी तो खींच रहा है ना, इकट्ठा हुआ है. मैटर बना ही शिव तत्व की वजह से. एटम क्यों इकट्ठा हो गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इतनी सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं. कौन खींच के रख रहा है उनको? वैक्यूम, शिव तत्व. तो हर जगह शिव तत्व है. एंड व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? नथिंग. So what is Shiva Tattva? Nothing but everything. Getting it? समझ रहे हैं? सारे शास्त्र तो यहीं पे हो जाते हैं.
इसीलिए सारे शास्त्र कहां से शुरू होते हैं? वेयर डज एवरी शास्त्र स्टार्ट फ्रॉम? शिवा। स्टार्ट फ्रॉम शिवा. Maybe some other people who have realized is calling it something else. They may call it something else, but it is fundamentally Shiva. Now, if you have a little intelligence and you want to understand how this universe is functioning, इस पे डाल दो, you will understand. If you want to know how your life is functioning, इस पे डाल दो, you will understand how your life is functioning. इस पे डाल दो, इस तरीके से ही होगा, कोई और तरीका है? होगा ही नहीं. यहां तो लोग दान भी कर रहे हैं अपने भले के लिए ना. नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए. अरे बाबा, कुछ नहीं चाहिए तो आप बोल क्यों रहे हो? आपको इंसान की असलियत कब समझ में आएगी? आप उसको देखो, उसकी इच्छा है कि नहीं है. If that person has desires or not. वही खिंच रहा है सब कुछ. Everything is going in. किसी की इच्छा बहुत स्ट्रांग हो सकती है, किसी की कम हो सकती है. बट यू सी एनीबडी इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी को भी देख लीजिए, केवल स्ट्रांग और हल्की इच्छाओं वाले लोग. डिजायर्स आर ओनली थिंग. स्ट्रांग और वीक. हु इज अ क्रिमिनल? वेरी स्ट्रांग डिजायर. हु इज अ क्रिमिनल? वेरी स्ट्रांग डिजायर. Who is a yogi? Very, very, very strong desire. So criminal can become yogi very easily. But if your desires are less, your life is vegetative. वापस अब मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूं हाउ टू लिव योर लाइफ. सीक्रेट ऑफ लाइफ नाउ. Secret of life. Secret. What is the secret of life? Low desire means low life. इच्छाएं कम का मतलब आप जीवन को भोग नहीं पाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे. You will not be able to experience life properly. आप इच्छा कम होगी तो सक्सेसफुल नहीं होंगे. You will not be successful. What is success? ये सारे क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं, बट मैं ये चाह रहा हूं कि आप इसको अच्छे से समझें. And I want you to be carrier of this knowledge. I want you to be carrier of this knowledge. From 21st of this month, 21 days, 21 दिन के लिए, we will be running a campaign. हम एक कैंपेन चला रहे हैं हम लोग. वो कैंपेन का नाम है, कैंपेन का क्या नाम है? A little touch of yoga. आप कम से कम ये फंडामेंटल चीज हर एक को टच करना चाहिए. दुनिया शास्त्रों में ढूंढ रही है ना चीजों को, तो क्यों ना उनको थोड़ी ये बहुत बेसिक चीज टच करें, सो दैट दे अंडरस्टैंड हाउ टू लिव अ लाइफ. एंड you can actually conduct this small program which will be finished in 1 hour. 1 घंटे के अंदर फिनिश हो जाता है. There will be a little teaching of a method. एक कुंभक मेथड लोगों को हम सिखा सकते हैं आपके जरिए. You can teach, है ना. एक सिंपल सा वीडियो होगा and there will be simple guideline. आप अपने कंपनी में करो, आप अपने सोसाइटी में करो, आप जहां मर्जी करो. हम आपको बता देंगे what to do. Play this video and then what to do next. ये आपको बता देंगे. And our कुंभक mentors will be your guide. जितने कुंभक मेंटर्स हैं वो आपके गाइड होंगे. आप उनसे सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं. एंड यू कैन रन दिस प्रोग्राम. और यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू, और आप सोचते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे. बट स्टिल इफ यू वांट समबडी एल्स टू रन इट, तो मेंटर्स कैन रन दिस प्रोग्राम.
So there will be secret of yoga being told to them, secret of life being told to them, special method. तो सबको चाहिए ना, सबको चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी इन्वॉल्व, ठीक है। तो योगदान करना है, आई एम ओपनिंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ योगदान। आप जैसे भी हैं, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी एज, एज कोई बाहर नहीं। आप 2 लोगों को भी बैठा के सिखा सकते हो, 200 लोगों को भी बैठा के सिखा सकते हो, बट देयर विल बी समथिंग very very core and fundamental they'll be able to see and understand. Now अगर आप अपने अंदर वैक्यूम जो है, खालीपना को बढ़ा दें, तो आपके पास में जल्दी चीजें खींचेंगी, यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर। अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहा हूं आपको, कोई बताएगा नहीं। चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इच्छा बढ़ानी पड़ेगी, खालीपना क्रिएट करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। एक मीरा जब रोती है तो कृष्ण सामने खड़े हो जाते हैं, एक रामकृष्ण परमहंस जब बिलखते हैं तो काली सामने खड़ी हो जाती है। क्या चाहिए आपको जीवन में? अगर नहीं मिल रहा है तो कहां देखना है, वेयर शुड यू लुक एट? इफ यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू विश, वेयर यू शुड लुक एट? क्या इच्छा है इतनी? इज देयर दैट काइंड ऑफ वैक्यूम? ईश्वर भी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कहां देखना पड़ेगा? इज देयर दैट काइंड ऑफ वैक्यूम? कहां मांगने जा रहे हैं, कौन सा ध्यान करने जा रहे हैं? लाखों सालों तक ध्यान करते रहोगे, साधना करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, नथिंग विल हैपन। व्हाई नथिंग विल हैपन? बिकॉज द वैक्यूम इज नॉट देयर। फिर किस्मत को आप दोष देंगे, मेरी तो किस्मत ही खराब है, आई एम द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या बात कर रहे हैं, किस्मत ही खराब है, यू डोंट हैव द वैक्यूम, आपकी इच्छा ही नहीं है। नहीं नहीं, मेरे ग्रह नक्षत्र खराब हैं। अरे ग्रह नक्षत्र भी ब्लैक होल में घुस जाते हैं, वापस नहीं आते। क्या आपके अंदर वो इच्छा है? क्या आपके अंदर वो वैक्यूम है? इच्छा को बढ़ाने का क्या तरीका है? सारी चीजें बता रहा हूं, आई एम टेलिंग एवरीथिंग। जो भी जिस शास्त्र में लिखा है, जिस किताब में लिखा है, उसका क्रक्स पता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? वो लाइफ तो जहां खाली जगह देखेगी उधर ही घुसने की कोशिश करेगी ना। वो रास्ता क्या है आप भी जान सकते हैं, आप भी जान सकते हैं। वो जिस इंसान की जो इच्छाएं हैं उस तरफ में वो घुसने की कोशिश करता है। कौन सी योनि में जाएगा, विच birth, what birth or life will take depends on what vacuum you have created. अगर आपकी इच्छा बहुत ज्यादा भोजन करने की है, सोने की है और सेक्स करने की है, तो क्या बनेंगे आप? सुअर बनेंगे। यस और नो? उसके जैसा कोई भी नहीं कर सकता इतना। तो आप कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई। If you just know what is the vacuum, you will also be able to know what you will become. तो ये भूतल जिसे कहते हैं, ये भूतल
जिसमें कि हमारी कॉन्शियसनेस है, जिस डायमेंशन में, उससे नीचे जाएंगे, उसे पाताल कहते हैं। पाताल मीन द कॉन्शियसनेस इज डाउन। ये पाताल कोई जगह नहीं है। आपके हिसाब से नॉट बिकॉज ऑफ एज पर योर फिजिकलिटी, बट इट इज एज पर योर वैक्यूम्स, एज पर योर वांट्स। हम तो अलग अलग डायमेंशन में दिखा रहे हैं। आप अगर पृथ्वी पर पाताल ढूंढने की कोशिश करेंगे, देन यू विल गेट कंफ्यूज। इट इज नॉट अ फिजिकल स्पेस, इट इज अ स्पेस विच इज अकॉर्डिंग टू विशेस। It is space according to dynamism of life. When we say स्वर्ग, स्वर्ग कोई कहीं पे है नहीं। Your state of being, उसके हिसाब से ये dimensions बने हुए। स्वर्ग is basically a little more vacuum than human life. Human life has certain vacuums, but if you evolve, there will be huge vacuums. That is स्वर्ग। आपकी और ज्यादा भोग सकते हैं, बट यू विल नॉट बी मुक्त इन स्वर्ग। कहीं नहीं लिखा किसी शास्त्र में स्वर्ग के देवताओं को मुक्ति नहीं है। दे विल हैव टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग। तो आप भोग ज्यादा सकते हैं विदाउट अ बॉडी। यू कैन बी इन अ ड्रीम लैंड, बट यू विल नॉट हैव अ फिजिकलिटी, सो यू विल नॉट बी एबल टू बी मुक्त फ्रॉम योर डिजायर्स इन स्वर्गलोक। वैक्यूम मीन्स खालीपन। वैक्यूम मीन्स शिव तत्व, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टीनेस। आप इमोशन में एम्प्टीनेस होता है आपको? इमोशन में यू वांट समथिंग, यू वांट टू टॉक टू अ फ्रेंड, किसी से गप्पे मारना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? तो वो इमोशनली फुलफिल करता है ना, आपको भरता है, तो यानी वो खाली जगह है ना। देयर इज एन एम्प्टी स्पेस इन योर इमोशनल डायमेंशन। ये हर जगह पे है, केवल फिजिकल नहीं। साइंस मैंने इसलिए बताया बिकॉज साइंस टॉक्स अबाउट फिजिकल एम्प्टी स्पेस। आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्टी स्पेसेस इन वेरियस डायमेंशंस। सो बेसिकली यू हैव 10 गुणास। 10 गुण होते हैं, ऑपोजिट कर दो तो 20 गुणास। 20 नहीं, इट इज नॉट 20, इट इज बेसिकली 10। 10। What is gunas? What is gunas? These are empty spaces, different kinds of empty spaces, and they can be a life whose whole period of existence will be about fulfilling that empty space. तो आपके अवतार कितने हैं? 10 गुण हैं, अवतार कितने हैं? Every avatar has a particular empty space or a quality. What is quality? It is basically empty space which that entity is trying to fulfill. Right? और आप इसके नंबर्स, अगर मैं आपको बात करना चाहूं, I can play with numbers. नंबर्स के साथ में बहुत खेल सकते हैं, बिकॉज wherever you are looking from, जहां से भी आप देख रहे हैं वहां से आप डिफरेंट नंबर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन टर्म्स ऑफ एग्जिबिटिंग योर लाइफ, आप जीवन को निर्वाह करने के टर्म्स में, दे कैन बी 8 एम्प्टी स्पेसेस। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मीमांसा। मीमांसा, न्याय, सांख्य, वैशेषिका। क्वालिटीज बता रहा हूं केवल, ये नाम आप टाइप कर लो, आपको मिल जाए, शास्त्र मिल जाएंगे। वैशेषिका, योग, ठीक है, एंड द 6th वन वेदांत। द 7th वन
अच्छा, ये दो और हैं. सेवेंथ वन विच इज कंप्लीटली डिस्कार्डिंग एवरी अदर सिक्स. इट इज सेवेंथ. Eighth one is completely encompassing all the seven. Is eighth. ये 8 क्वालिटीज हो गई, वो 8 वैक्यूम्स के ऊपर डिपेंड करता है. मगर आपने ये 6 शास्त्र जरूर सुने होंगे. सो दिस इज योर 6 चक्रास. मीमांसा इज अनाहत. देन कम्स, यहां से इच्छा होती है ना, मीमांसा इच्छा, अनाहत. द सेकेंड वन इज नेवल, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, न्याय. थर्ड वन इज क्रिएटिंग सेंटर, स्वादिष्ठान, जहां से नंबर्स में आप एक फिजिकल एंटिटी को पैदा करते हो. नंबर्स हैं, उसके हाथ इतने बड़े, उसके पांव इतने बड़े. फिजिकलिटी हैज नंबर. नॉन फिजिकल डायमेंशन डजंट हैव नंबर. आप पैदा कहां से करते हो मनुष्य को? स्वादिष्ठान. सो इट इज सांख्य. संख्या दे दिया आपने, आपने अपनी इच्छा को एक नंबर दे दिया. सांख्य, वैशेषिका, भोगना दुनिया को, मूलाधार. देन कम्स योग, विशुद्धि एंड वेदांत. इन सबको इकट्ठा कर लो, इन सबको डिस्कार्ड कर लो. 2 मोर, टोटल 8 हो गए. 8 हो गए. नाउ 8 into 10 gunas. How many? 80. And it will have 4 directions. ब्रह्मा के सिर कितने होते हैं? 4. तो टोटल कितने हो गए? 84. 84 universe. This is the 84th universe. Therefore, there are 84 asanas. Not one less, not one more. There are 84 factors which create this human life, current human life. That is what I say. 84 factors हैं आपके अंदर, जिससे आपका हेल्थ या फिर आपकी लाइफ. दूसरे तरीके से नंबर बताऊं, इन अ डिफरेंट वे. यू हैव अष्ट शरीर, शरीर के 8 हिस्से. एंड देयर आर षड बल, 6 बल हैं, 6 फोर्सेस. Forces can be applied in pushing and pulling. 2 तरीके से अप्लाई किया जा सकता, pushing and pulling. So 8 6 48. 48 into 2, 96. Your body is 96 finger width. Only if it is 96 finger width, you can actually use all the 84 forces. Plus, there are 12 dimensions which is beyond this body. 96 plus 12, how many? 108. 108 is the principle on which this solar system is made. आप खेल सकते हैं नंबर्स के साथ में, but every number is true. 84 is also true. 108 is also true. And there is something called as 64 is also true. 8 bodies. अब मैंने 8 डायमेंशन बताया. 8 into 8, 64. 64 योगिनी, 64 भैरव. You can play with numbers if you understand a certain basics. But नंबर से काम नहीं चलने वाला. So how to create a little vacuum inside? अब मैं बहुत सिंपल कुंभक पे आ रहा हूं. Can you create vacuum through kumbhak? You can create vacuum through kumbhak. You can actually create fulfillment also through kumbhak. दोनों तरीके से काम करता है.
So you can actually crash all your desires with Kumbhak, and you can create lot of desires with Kumbhak. So we are talking about creating lot of desires, not crashing desires. I can do that, or you can do that also. The crashing desires will be the spiritual aspect of dimension of Kumbhak, and creating desire will be worldly aspect of Kumbhak. So dynamic factor, काम करना, is because of desire. If you don't have desire, do you think you will be able to function? So do you think your heart is functioning because of desire? Yes. Without desire, your heart will not function. Will your liver function without desire? It will not function. So these vacuums or these desires get created because there is a placement of various factors in universe. दुनिया में अलग अलग चीजों का प्लेसमेंट है, उसकी वजह से आपके अंदर इच्छाएं क्रिएट होती हैं. ओके, और डीप जाने पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकलिटी. मैं ऐसे बैठ के बात करता रहूंगा तो करते जाऊंगा. सो वैसे ही 10:40 हो गए, तो गर्भाधान पीपल, उनके लिए थोड़ा प्रैक्टिस दे देते हैं. फिर विल टॉक अ लिटिल एंड देन विल डू अ लिटिल टॉक प्रैक्टिस. गर्भाधान के लोगों के लिए, ओनली फॉर गर्भाधान पीपल, नोबडी एल्स. इच्छा ही निर्वाण है. हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन बोलने लग गए अब आप. गुड. कुछ तो फर्क पड़ना ही चाहिए. बिल्कुल सही बात है, इच्छा ही निर्वाण है. तो गर्भाधान पीपल, आपको करना क्या है? यू सिट इन सच अ मैनर, आप ऐसे बैठे जैसे कि आलती पालती नहीं लगाना. नो क्रॉसिंग ऑफ लेग्स, है ना. आलती पालती नहीं मारेंगे. यू सिट इन सुखासना. योर राइट लेग्स शुड बी अ लिटिल इनसाइड, जैसा कि आपको बैठने के लिए बताया जाता है. और अर्ध सिद्धासन में राइट लेग इनसाइड, है ना. तो राइट लेग इनसाइड, लेफ्ट लेग आउटसाइड, ऐसे करके try to sit in such a manner where the perineum is near the ground. जो जननेंद्रिय और मलद्वार के बीच की जगह है ना, it should be थोड़ा आगे को होके बैठे. So the perineum will be either touching the ground or very close to it. फिर आपको करना क्या है? So you have to inhale. इनहेल करेंगे एंड आप महसूस कर सकते हैं अपना यूरिनरी ब्लैडर, द स्वादिष्ठान रीजन, बोथ मेल एंड फीमेल, है ना. मेल्स में प्रोस्टेट एंड यूरिनरी ब्लैडर, फीमेल्स यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस का एरिया जो है जस्ट अबव द जेनाइटल. वो एरिया ना, आप अगर कॉन्शियसली देखें तो आप उसे टाइट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं. यू कैन कॉन्शियसली टेंस इट एंड रिलैक्स इट, है ना. You do it 8 times, tensing and relaxing of urinary bladder region. स्वादिष्ठान पंपिंग. क्या हुआ? स्वादिष्ठान पंपिंग 8 times, है ना. उसके बाद एक्सेल, इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, डू द पंपिंग, एक्सेल, रिलैक्स. एक राउंड हो गया. दिस इज 1 राउंड. डू 8 राउंड्स, 8 राउंड करना. डू 8 राउंड्स ऑफ दिस. 8 राउंड्स करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? देन व्हाट यू डू? इनहेल फुल, पूरा इनहेल करेंगे. क्लच योर स्वादिष्ठाना. स्वादिष्ठाना के रीजन को थोड़ा सा टाइट कर लें.
and try to push it down towards the earth. पृथ्वी में उसको धकेलने की कोशिश करो. Once again, inhale, hold, tense the bladder region को टाइट कर लें and try to push it towards the earth. पृथ्वी की तरफ में उसको पुश करने की कोशिश. And then hold it till you are comfortable. Exhale and relax. How many times? 8 times. So दो स्टेप में करना है. The first step is inhale, hold, Swadhisthana pumping 8 times. Exhale, relax. एक राउंड हो गया. Do 8 rounds. ऐसे 8 राउंड करेंगे. After this, inhale, hold, tense your Swadhisthana, push it towards the ground. पृथ्वी की तरफ इसको धकेलेंगे. Hold and push. Keep pushing it. थोड़ा पुश करके ये पुश बना के रखो. Keep holding your breath. सांस को रोक के रखो. And when till your capacity, आपकी capacity अगर हो गई पूरी, exhale, relax. So how many times? Again 8 times. First step 8 times, second step 8 times. ये पूरा हो जाए, finish your process and sit. तब तक आप ये करते रहें. Only people who are a participant of Garbhadhana program. This is only for Garbhadhana participants. So Kumbhak can create vacuum, enhance your vacuum. Kumbhak can also dissolve you into that vacuum. So that aspect which dissolves you is called as Kaivalya Kumbhak. जो एस्पेक्ट आपको डिसॉल्व कर देता है उसको कैवल्य कुंभक कहते हैं. और जो आपकी इच्छाओं को और सुदृढ़ करे, which enhances your wants, that is normal कुंभक. दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. And कुंभक is one of the most powerful method to actually play with the vacuum. Now, कैसे करेंगे? We'll do it. We'll do a little process. उसके थ्रू करेंगे. But in this process, जब हम ये process करते हैं, when we do this process, all the people who are here, जो लोग यहाँ पे हैं, उनको एक बात ध्यान रखना चाहिए, that you have come here to experience a little bit of other dimension. ये अपनी इच्छा से आए हैं आप. And because it is related to the Shiva Tattva, we think you have a right to it. That is why we are not charging anything from you. हम आपसे कोई पैसा नहीं लेन देन नहीं कर रहे इसके अंदर. लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है. This is your responsibility. So if you feel some sudden change in your life, one thing be assured, एक चीज आप बताएं, आपको मालूम होना चाहिए कि there is nothing wrong in it. कुछ भी गलत नहीं है. Maybe you are not liking it. शायद आपको पसंद नहीं आ रहा, but इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है. It will open up different dimensions in your life whenever it will find a suitable opportunity. जो भी आप प्रोसेस करते हैं, जब उस प्रोसेस को अपनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये आपके अंदर जीवित हो जाएगा. आपकी लाइफ में बदलाव भी आ सकते हैं, मगर ये जिम्मेदारी आपकी है. कुछ गलत नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर. तो आप घबराने नहीं लगते. If you have come here, that means taken for granted that you want it.
है ना, आप झेल नहीं पाए वो एक अलग बात। इफ शिव डिसेंड्स ऑन यू, अगर शिव तत्व आपके ऊपर आने लग जाए तो शायद आप तैयार ना हो उसको झेलने के लिए, मगर गलत तो कुछ भी नहीं। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो वो आएंगे ही नहीं, और इट विल नॉट डिसेंड अपॉन यू। द ग्रेटेस्ट वैक्यूम विल नॉट डिसेंड अपॉन यू इफ यू आर नॉट रेडी. You might get into a little cocky things, cacophonic things. थोड़ा शायद आपके साथ में कुछ उलझुल चीज हो सकता है, but it will settle down. हाँ, तो शक्तिपात के लिए भी एलिजिबिलिटी चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं होता है ना। जब तक आप झेलने लायक नहीं है तब तक वो होगा ही नहीं. दिस इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स. जो मैंने बताया वो ऐसे ही है. वैक्यूम नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी. विल इट रेन व्हेन देयर इज लेस लो प्रेशर जोन? इट विल नॉट रेन. आप कितना भी बोलो अरे खतरा है, क्या पता बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, नहीं, वैक्यूम नहीं होगा, लो प्रेशर नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी. कुछ भी कर लो, डू व्हाटएवर. तो पहली बात तो डरना बंद कर दें जीवन में. डरना बंद कर दें, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है. उससे क्या डरना. हाँ, आप सोते हैं, व्हेन यू स्लीप, डू यू फियर स्लीप? आप सोते हो तो डरते नहीं. व्हाट डू यू डू व्हेन यू स्लीप? यू ड्रॉप एवरीथिंग ना, इवन योर अवेयरनेस. आप सब कुछ छोड़ देते हैं. रोज आपकी मृत्यु हो रही है, और वो मृत्यु कितनी सुंदर होती है. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू स्लीप वेल, इजंट इट? नींद गहरी आए तो अच्छी होती, खराब होती? इट्स गुड. अगर आपकी मुक्ति नहीं होने वाली साहब, मैं बता रहा हूं, मृत्यु हो जाएगी, मुक्ति नहीं. यू विल अगेन बी बॉर्न. थोड़ा ज्यादा देर सो लिए तो क्या अच्छा है बुरा है? इज इट गुड और बैड? इफ यू स्लीप अ लिटिल मोर, इज इट गुड और बैड? हाँ, ज्यादा रिकवरी चाहिए तो ज्यादा नींद आएगी कि नहीं आएगी. सो यू हैव वर्कड अ लॉट विथ योर बॉडी, यू विल स्लीप अ लिटिल बिट मोर, which is death, which is good, not bad. The most beautiful thing is death. उस वैक्यूम में घुसना क्या खराब है? उसी में तो निकले, उसी से तो निकले. सो जीवन जहर है. जरा सीधा रखते हैं वापस चीजों को. लेट्स पुट थिंग्स इन राइट वे, इन राइट पर्सपेक्टिव. मृत्यु इज टेम्पररी, लाइफ इज ऑल्सो टेम्पररी. मोक्ष इज परमानेंट, mukti is permanent, right? So life is poison because it is temporary. जीवन टेम्पररी है, इट इज पॉइजन, ये जहर है. सूर्य क्या, सूर्य को कहते हैं जहर, इंदु, जहर. चंद्रमा को क्या कहते हैं, व्हाट इज मून? अमृत. अमृत. So what is opposite to life? It is permanency. This is called as sanatana. What is life? Asanatana. What is moksha? Sanatana. Permanent. What is opposite to life? Temporariness का opposite क्या होगा? Permanency. जिसको हम शिव तत्व भी कहते हैं. So what is शिव तत्व? Permanent, sanatana. Death is also temporary. It is not opposite to life. Life का ही part है. Temporary, temporary. It's both life. मोक्ष is permanent. Temporary का opposite क्या है? Permanent. Sanatan is permanent. What is Sanatan? Sanatan, permanent. And what is Sanatan? Shiva Tattva. Shiva is permanent.
That is why Shiva wears a moon. Moon है ना, Soma. Soma can lead you to permanency. ठीक है, सोम तत्व से आप परमानेंट होंगे. सूर्य तत्व हमेशा टेम्परेरी है, आपको जीवन देगा मगर दैट इज टेम्परेरी. सूर्य जीवन देता है, दैट इज टेम्परेरी. सो डेथ इज ऑल्सो टेम्परेरी. व्हाट इज परमानेंट? मुक्ति, मोक्ष इज परमानेंट. चीजों को सही पर्सपेक्टिव में समझेंगे ना तब समझ में, राइट. तो जीवन जहर है, पर आपको ज्यादा जहर चाहिए ना, ज्यादा जीवन चाहिए. अब ज्यादा जहर खाएंगे तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर मोर पॉइजन? सोमा. और परमानेंसी इज द सॉल्यूशन फॉर मोर पॉइजन. एनीवे, कितना भी खा लो, जाना तो परमानेंसी की तरफ में. तो एवरीबडी इज गोइंग टुवर्ड्स परमानेंसी, मुक्ति, मोक्ष, गेटिंग एनाइलेटेड इन शिव तत्व. यूनिवर्स भी वहीं जा रहा है ना, यूनिवर्स भी कोलैप्स कर जाएगा, ब्रह्मांड भी कोलैप्स कर जाएगा आफ्टर few billion years or trillion years, कुछ भी कह लो, it will annihilate in Shiva तत्व. तो पहली चीज, परमानेंट जीवन की इच्छा गलत इच्छा है. इट्स अ रॉन्ग डिजायर. इट्स अ रॉन्ग डिजायर. हमेशा जिंदा रहें, इट्स अ रॉन्ग डिजायर विच वेस्ट इज ट्राइंग टू अडॉप्ट. हमेशा कैसे जिंदा रहे? इट्स अ रॉन्ग डिजायर. हमेशा जिंदा नहीं रह सकते. यू कैन बिकम लाइक परमानेंट, बट यू कैन बिकम अ परमानेंट लाइफ. शब्दों का जाल समझिए. यू कैन बिकम परमानेंट, बट यू कैन नॉट बिकम अ परमानेंट लाइफ. इफ यू बिकम परमानेंट, दैट स्टेट इज कॉल्ड एज मोक्ष. उसमें मृत्यु नहीं है. इसीलिए शास्त्रों में पढ़ते हैं, ये करने से मृत्यु टल जाती है. Now you are thinking about body dying. No, they are not talking about it. आप समझिए, शास्त्र में जो बोल रहे हैं ना, उसके लायक बनना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा. To understand Gita, you have to evolve your consciousness to the level of Krishna. Then you will understand Gita. ऐसे तो फुकट का इधर उधर करते रह जाएंगे, लॉजिकल. And you can see it right and wrong and so many things. ना 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 ना. मृत्यु खत्म हो जाने की बात जब भी शास्त्रों में कही गई है, दे आर टॉकिंग अबाउट मोक्ष, जहां मृत्यु नहीं है. मृत्यु इज ऑल्सो टेम्पररी. इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. डेथ इज नॉट ऑपोजिट टू लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो टेम्पररी. मृत्यु खत्म हो जाने का मतलब मुक्ति, मोक्ष. नो डेथ, नो लाइफ, नो डेथ. तो शास्त्रों में जब भी आप ये शब्द पढ़ते हैं कि ये करने से मृत्यु खत्म हो जाती है, then you should understand what they are talking about. ठीक है. So first desire, do not try to live forever. जहर ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाओ, खूब एंजॉय करो. You will get stoned with it. थोड़ा ड्रिंक पीते हैं ना तो नशा आता है, मजा आता है ना, चलेगा. ज्यादा पियोगे, गड़बड़. तो ज्यादा लाइफ नहीं चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए. whatever life, whatever the universe allows you, जितना टाइम यूनिवर्स के में अलाउ हो रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ यू. यूनिवर्स डिसाइड नहीं कर रहा, आप ही ने डिसाइड किया. whatever life happens with your factors, live a beautiful life. What is your responsibility? Living a beautiful life, even if it is 1 hour. Live a beautiful life, powerful life. Do not try to live forever. आप बोल रहे हैं मुझे ज्यादा जहर खाना है ना, दिस इज नॉट गुड. कम से कम लॉजिकली तो बात करो, लॉजिकली बात करो. You should try to become permanent, not live your life permanently. No, it will never happen.
सो आप हमेशा गलत चीज सोचेंगे, गलत डिजायर करेंगे, यू विल क्रैश, योर माइंड विल क्रैश कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, यू विल गेट इनटू परवर्ट माइंड एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो खूब अच्छी इच्छा करनी है, और इच्छा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लाइफ भोगने के लिए होता है, इसे भोगी, एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं। आई एम नॉट सेइंग एक्सप्लॉइटेटिव, आई एम सेइंग भोगना। भोगना हमेशा प्रेम से होता। हाउ डू यू एंजॉय थिंग्स व्हेन यू आर वेरी ब्यूटीफुल इनसाइड। आपके अंदर परेशानी है और बहुत अच्छा मौसम है, विल यू एंजॉय द वेदर? नेवर। तो आप वेदर को भी एंजॉय नहीं कर सकते if you're not fine with it. So you have to be in a very beautiful state for bhoga. भोग is not exploitation. दोबारा से बता रहा हूं, भोग can happen only when you are in a very very beautiful state. तभी आपको संतुष्टि भी होती है। अगर आप गालियां दे रहे हो, क्रिब कर रहे हो, साथ में भोजन कर रहे हैं, यू विल नॉट इवन फील सैटिस्फाइड विद दैट फूड। उस भोजन से तृप्ति भी नहीं मिलती। सो द फर्स्ट थिंग फॉर भोगा, यू शुड बी एलिजिबल, मेक योरसेल्फ एलिजिबल। आप जितना आपके बॉडी के अंदर शक्तियां मजबूत होंगी, उतना अच्छे से भोग पाएंगे, उतनी जल्दी आपको मोक्ष भी मिल सकता है। सो इट भोगना भी तभी होगा when you are fine with it. And bhoga happens with a very beautiful state. The very lifted state of bhoga is called as bhakti. भोग की उत्कृष्ट स्थिति को भक्ति कहते हैं। Once again, put things right. चीजों को सही जगह पे डालो। भोग की बहुत उत्कृष्ट स्थिति को ही भक्ति कहते हैं, और भोग की निचली स्थिति को भक्ष्य कहते हैं। भक्षना, भक्षण, एक्सप्लॉइट करना। भोग is a non-exploitative thing, and a very beautiful state of bhoga is bhakti. जहां आप ईश्वर को भोग रहे हैं वो भक्ति है। जब आप ईश्वर को भोगते हैं तो वो भक्ति है। वो जो ईश्वर, जो शिव तत्व है, वो आपके अंदर है ना, अभी आप उसको भोग नहीं रहे। किसको भोग रहे हैं? वॉट आर यू एक्सपीरियंसिंग? योर बॉडी, योर माइंड, योर आइडियाज, योर इमोशंस। आप तो उस शिव तत्व का भोग ही नहीं कर रहे। सो भोगना, उस ईश्वरीय तत्व को भोगना, the core of what you call as you start experiencing it. It is called as bhakti, or it is called as state of yoga. So एक योगी भी क्या भोगना चाह रहा है? उस तत्व को भोगना चाह रहा है। So what is samadhi? Samadhi is state where you are experiencing the very core of life. उस वैक्यूम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब आप उसको भोगना शुरू करते हैं तो वो आप ऐसी स्थिति में आ गए जिसे हम भक्ति कहते हैं। तो किसको भोग रहे हैं आप भक्ति में? अपने ही आपको तो भोग रहे हैं। अपने कोर को ही तो भोग रहे हैं। So you can do it in many ways. You can do it in many ways, and those many ways are path. वो रास्ते हैं to get that state of yoga where you, जहां पे आप ईश्वर को भोग रहे हैं,
उस योग की स्थिति में आने के लिए बहुत रास्ते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, अभी अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे, यू स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग विच यू लाइक, और म्यूजिक समथिंग, सम म्यूजिक विच यू लाइक, जो आप म्यूजिक एक गीत ऐसा गाने लग जाए जो आप बहुत पसंद करते हैं, फिर आप वापस से भोगना शुरू कर देंगे अपने आप को। तो म्यूजिक से आप अपने आप को भोग सकते हैं, म्यूजिक से आप अपने कोर को भी भोग सकते हैं, देन दैट म्यूजिक विल बिकम योगा। म्यूजिक के जरिए आप उस ईश्वरीय तत्व, शिव तत्व को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो दैट इज द साइंस ऑफ साउंड। मंत्र, संगीत और क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, ये सब इंडिया में बना ही इसलिए, सो दैट यू कैन स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द शिव तत्व। आप जब डांस करते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? यू स्टार्ट एंजॉइंग योर बॉडी, योर फीलिंग बिकम्स गुड, you can also start experiencing the innermost core। बाहर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो अंदर जा सकते हैं ना। So these are dances, classical dances। हम तो कहते ही हैं कि डांस जो है, it's an divine art, and the first dancer was Shiva। शिव का तांडव ही ये सृष्टि है। What is universe? It is तांडव of Shiva। If you start doing that तांडव, you start experiencing Shiva। If you start enjoying yourself, start enjoying more, and you will start experiencing Shiva तत्व। नृत्य की पराकाष्ठा तांडव और शिव तत्व। अगर शरीर को आप स्थिर करते जाएं, if you start stabilizing your body, first you will start experiencing your body, then you will start experiencing the inner part, like your mind and the subtle body and the subtle body and the subtle body, and ultimately you'll start experiencing Shiva Tattva। This is the path of asana, hatha yoga। You start thinking through your mind, confuse your mind in such a manner that it becomes absolutely still, it becomes confused and breaks down। Your mind becomes absolutely still and you'll start experiencing Shiva Tattva। This is the path of Jnana Yoga or Raja Yoga। You start stabilizing your energy or experiencing your energy and start stabilizing it to an extent where it becomes absolutely still. It becomes like a vacuum, and this is the path of Kriya Yoga। कोई भी पाथ बना लो, आइसक्रीम खाने का योगा बना लो, experiencing ice cream in such a manner that the experience becomes so intense, you start experiencing the core of you, ice cream yoga। कुछ भी डाल, you fundamentally want to experience the vacuum which is there in you। ये क्या अलग है आपसे? नहीं, हमेशा है ना, उसके बगैर तो आप हो नहीं सकते। That is why when you start experiencing it, it is not a new experience, it is always a realization। अगर आप उस शिव तत्व को एक्सपीरियंस करेंगे तो नया एक्सपीरियंस नहीं होगा। Anyway, it is always there। आपने लेट किया एक्सपीरियंस करने में, so what? It was always there।
That is why it is always a realization, not a new experience. वो है ही, वो एक्सपीरियंस आपने किया ही है. So it is always a realization. हम इसीलिए उस टर्म्स में, अंग्रेजी के टर्म्स ना, इट इज नॉट सफिशिएंट एनफ टू डिस्क्राइब द इनर रेल्म ऑफ लाइफ. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट in terms of mukti, moksha, or technically samadhi. We don't call it realization, we call it samadhi. Your consciousness will be in sama state. It will not be distracted. It will be in a state where it will get integrated. समाधि के बाद डेथ होता है क्या? नो, डेथ तो आपके फिजिकलिटी के साथ में खत्म हो गया. लेकिन क्या आपका शरीर खत्म होगा? 100%. मगर आपका एक्सपीरियंस वो खत्म नहीं होगा, बिकॉज इट हैज एक्सपेंडेड बियॉन्ड यू. सो देयर इज नो डेथ देयर. बट इज देयर लाइफ? नो, देयर इज नो लाइफ देयर. देयर इज नो डेथ देयर. देयर इज नो डुअलिटी देयर. अच्छा, now let's come back to the crux of things. तो आप अपने जीवन में हमेशा जीने की कोशिश ना करें, बट जितना भी जीवन है बहुत सुंदर से जीने की कोशिश करें. If you want to live a very beautiful life, you have to make this beautiful and strong and healthy. ये जरूरी है सबके. तो मोक्ष का रास्ता भी जीवन से ही जाता है, ये जीवन से पृथक नहीं है. The path of enlightenment goes through life. It is not against life. So live a beautiful life, very strong and beautiful life. इच्छाओं को बढ़ाना है तो आपको बहुत सारी चीजें, अपने माइंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने शरीर को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने और भी अलग आयाम को इस्तेमाल कर, बट इमोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको याद है जब आप इच्छा होती है एक फीमेल की, एक फीमेल को समझिए, आपको समझना है, जब उसकी इच्छा होती है वो सारे नखरे कर लेगी, उसको चाहिए वो ना. So females are more closer to life. If male has to learn something, they need to learn from female. Because of a female, this whole universe got popped out of Shiva. Shiva बेचारा आराम से पड़ा हुआ है, permanent. He is permanent, no? He doesn't need a temporary universe. Shiva Tattva is permanency. So, do you think permanency needs a temporary universe? No. But Shakti needs it. शक्ति को चाहिए, पार्वती को चाहिए. तो शक्ति शिव को वू करती है, उत्तेजित करती है. जब शिव उत्तेजित हो जाते हैं तो द यूनिवर्स गेट्स पॉप्ड आउट ऑफ हिम. रुद्र फूटता है. बिग बैंग थ्योरी आपने सुना होगा ना, ये हम हजारों साल पहले बोल रहे थे, और हम कह रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल बिग बैंग, नॉट सिंगल बिग बैंग. वी ऑलवेज सेड देयर वाज मल्टीपल बिग बैंग. रुद्र मीन्स अ रोर, मल्टीपल बिग बैंग, एंड दैट दिस यूनिवर्स गॉट पॉप्ड आउट. किसकी वजह से यूनिवर्स बना? शक्ति. And Shakti molded this universe into various forms she liked. तो हम लोग क्या हैं? शक्ति का मोल्ड हैं. The basic material is Shiva, but who molded it? Shakti. That is why this is Shakti's universe. ये फेमिनाइन के लिए यूनिवर्स बना हुआ है. फेमिनाइन भोगती हैं. पैसा कौन कमाता है? आदमी. पैसे को खर्च कौन करता है? औरत. आप पैसा कमाते क्यों? आपको तो चाहिए नहीं इतना कुछ. नहीं, आप इसलिए कमाते हो क्योंकि वो भोग पाए.
सो दिस इज यूनिवर्स इज फॉर फीमेल्स. अगर देखना है कि वो, यू लुक एट अ फीमेल, द वे शी एंजॉयज लाइफ, उसको एक्चुअल में परिवार किसको बनाना है? फीमेल को बनाना. मेल तो खुला सांड है, उसको थोड़ी बनाना है. वो तो फीमेल उसको पकड़ के रखती है. तो फैमिली इज फॉर फीमेल्स. She wants a family. She wants to do small beautiful things in life. उसको ये छोटी छोटी चटपटी चीज खानी है, उसको सुंदर सुंदर कपड़े पहनने हैं, उसको गप्पे मारनी है, उसको एंजॉय करना है. So this is, you should learn from female. Start enjoying life. Small things. नहीं तो सर्व करो आराम से फीमेल को, क्या प्रॉब्लम? Serve your female and life will come to you. So कुंभक आपके अलग अलग वैक्यूम्स इच्छाओं को बढ़ाता है. That is why you'll see after doing कुंभक, your capacity to function will become a little more. आपके शरीर की क्षमता भी बढ़ जाती है. You start eating things up. चीजें खाना ज्यादा अच्छे से शुरू कर लेते हैं, भूख ज्यादा अच्छे से लगती है. So we are trying to increase the various vacuums on different dimensions which is there in you. तो हम कर क्या रहे हैं? उस वैक्यूम को बढ़ा कर रहे हैं, हम एक पुश दे रहे हैं एक डायरेक्शन में. यू होल्ड योर ब्रेथ, आप सांस रोक लेते हैं, एंड देन यू गिव अ लिटिल पुश. तो ये जो मूवमेंट है ना, फ्रॉम हायर पोटेंसी टू लोअर पोटेंसी, ये पुश बढ़ जाता है, ये पुश बढ़ जाता है, एंड it will transform your life for sure. It will increase various vacuums, but once it is fulfilled, then it will start taking you towards Shiva Tattva. So it has both aspects. वो लाइफ के थ्रू ही मोक्ष जा रहा है, उसके विपरीत नहीं. तो जीवन अच्छा करना है तो कुंभक करना है, मुक्ति चाहिए तो कुंभक करना है. We'll do a little process, थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस करेंगे. Today's process is once again, इसलिए मैंने precautions आपको बता दिया. It's a very powerful process, बहुत पावरफुल प्रोसेस है. अपनी कैपेसिटी से ही करें, ज्यादा पुश करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि